امریکہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ چاہتا ہے کہ وہ بگ بردر بنے ساری دنیا کا، انٹرنیشنل پیس کا وہ چیمپئن کے طور پر ساری دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے ممالک کی فکر اس کو ہے، مگر در حقیقت انٹرنیشنل لیول پر پیس کو شیٹر کرنے کے لیے، امن کو تباہ کرنے کے لیے، بدامنی پیدا کرنے کے لیے اس نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے۔ کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ سال 2023 سے لے کر اب تک تقریباً 3 سالوں کے دوران اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے اس نے غزہ میں جو قیامت مچائی ہے، جس کے نتیجے میں 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی ہیں اور معذور بن گئے ہیں، کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں، کئی خواتین بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ بربریت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ساری دنیا میں یہ بربریت پھیلانے کا کام امریکہ کرتا رہا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کو ہمیشہ اپنے مقدمات کی پیروی کے دوران اس کو ایک بہت بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ آج بھی اس عالمی عدالت کے شکنجے بنجامن نیتن یاہو پر لگے ہوئے ہیں، مگر اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ سے طاقت ملتی رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر حملہ کیا ہے۔ حملہ اس وقت ہوا ایک طرف بائی لیٹرل ٹاکس یعنی باہمی گفتگو چل رہی تھی آرمامنٹیشن کے تعلق سے، اسلحہ سازی کو ختم کرنے کے حوالے سے، امن قائم کرنے کے حوالے سے امریکہ کے درمیان عمان نے ثالثی کردار نبھایا تھا، اور امریکہ کے ساتھ ایران کے عہدیداران اس کی گفتگو میں شامل تھے۔ ابھی گفتگو ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جانب اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ بول دیا۔ گزشتہ سال 2025 میں بھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ بولا تھا۔ وہ حملہ وہاں کے جتنے بھی نیوکلیئر بیسز ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی کارروائی کی تھی، ایران نے بھی حملے کیے تھے اسرائیل پر، مگر اس بار 27 فروری 2026 کو اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اس بار اس طرح کی منصوبہ بند طور پر وہاں حملے کیے ہیں کہ اس نے نشانہ بنایا ایران کے سپریم لیڈر، رہبر اعظم آیت اللہ خامنئی پر، اور وہاں کے جو مختلف اہم عہدیداران ہیں ان پر، اور کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کرنے کی اس طرح کی منصوبہ بند کوشش کی کہ یہ حیرت انگیز طور پر کہا جا سکتا ہے۔ 28 فروری اتوار کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر یہ کہا ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا جو ڈینجرس آدمی تھا، ایول آدمی تھا، جس سے نقصان ہوتا تھا، شیطانی آدمی تھا، اس کی موت ہو گئی ہے، اور ایران کو نہیں معلوم ہو سکا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کس طرح منصوبہ بند طور پر کوشش کی ہے کہ انہوں نے ایسے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا کہ اس وقت جب ایران کے سپریم لیڈر اپنے کام میں مشغول تھے، اپنے عہدیداروں کے ساتھ انہیں نشانہ بنایا، اس میں وہ قتل ہو گئے، اور ان کے خاندان کے کئی احباب، جس میں ان کے داماد، بیٹی، پوتی، یہ سب لوگ بھی وہاں پر، اور کئی جو اہم جو اس میں ملٹری میں تھے ایران کی، وہ سارے لوگ بھی وہاں پر شہید ہو گئے۔ ساری دنیا کو اچنبھا تھا کہ وہ شخص، ایران کا سپریم لیڈر، جس نے ہمیشہ امریکہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت کی اور چیلنج کیا، ساری دنیا جب خاموش تھی، اسلامی ممالک جب خاموش تھے اور خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایران وہ واحد ملک تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے غزہ کے مظلومین کی مدد کے لیے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لی تھی، اور ہمیشہ انہوں نے مسلکی امتیازات سے ہٹ کر، شیعہ سنی امتیازات سے ہٹ کر، انہوں نے ہمیشہ عالم اسلام کا پرچم اور اسلام کے امن کے پیغام کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ ایران امریکہ کی آنکھ میں کھٹکتا رہا ایک دشمن کی طرح۔ اسرائیل کے لیے بھی وہ بہت بڑی رکاوٹ ہمیشہ بنتا رہا۔ انہوں نے موقع کی طاق میں رہ کر ایک طرف امن کے مذاکرات چل رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے حملہ بول دیا۔ آج جہاں امریکہ اور اسرائیل جشن منا رہا ہے، اور کئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ایسے لوگ ہوں گے جو امن کے دشمن ہیں، وہ لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مگر دوسری طرف امن پسند جتنے بھی لوگ ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہر ملک میں بشمول ہندوستان میں، برصغیر میں، سارے لوگ غم میں ہیں، رنج میں ہیں، اس لحاظ سے کہ
खामना ई जो थे वो हमेशा उन्होंने एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें की थी। हम जानते हैं कि 1978-1979 के दरमियान ईरान का रिवोल्यूशन आया। ईरान के इनकलाब की वजह से वहाँ पर जिस तरह की शाहाना मानार्की थी उसका तख्ता पलट कर इस्लामी रिपब्लिक वहाँ कायम हुई थी। और आयतुल्लाह खमीनी की वफ़ात के बाद तकरीबन 40 बरस तक 86 साल के आयतुल्लाह खामेनी ने सियासी और मजहबी तमाम उमूर को अपने हाथों में रखा और एक मजबूत हुकूमत चलाते हुए अपने लिए एक रिकॉर्ड कायम किया था। मगर ईरान में भी बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें मजहबी एतबार से जो थियोक्रेसी थी ईरान में वो उन्हें पसंद नहीं थी। आज़ाद ख्याल लोग इसकी मुखालिफत में थे। अभी चंद महीने पहले ईरान में वहाँ की महंगाई के एतबार से माशी जो मसाइल थे उसके हवाले से और सियासी काया पलट के लिए भी मुजाहरे हुए। अमेरिका ये कहता रहा है कि मौका है ईरान में खामना ई की हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए और फिर से दोबारा जमहूरियत का वहाँ पर निफाज हो पाए। रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका ने जो प्लान बनाया था हमें नहीं लगता कि वो अब हो पाएगा। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आज भी बादशाहत है, मनार्की है, मगर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को कभी भी ये फिक्र नहीं लायक हुई कि वहाँ डेमोक्रेसी आए। ईरान पर इसकी नज़रें इस लिहाज से रही हैं कि ईरान ने कभी भी अमेरिका की परवाह नहीं की और उसने हमेशा अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेस को मुत्तहद रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए, न्यूक्लियर पावर को हमेशा मजबूत बनाने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी के लिए इसने हमेशा मजबूती से काम किया। कई बार अमेरिका ईरान को धमकी देता रहा कि वो हथियारात को जमा करने, हथियारात को, मिसाइल्स को अपने पास रखने से वो बाज आ जाए। ऐसा भी कई बार हुआ है कि अमेरिका ने कई ममालिक को कह रखा था, इससे पहले कि जिस तरह के इराक़ को कह रखा था और कई दीगर ममालिक को, लीबिया वगैरह को, कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स या न्यूक्लियर पावर हमेशा इससे आप दूर रहें, क्योंकि अमन के माहदे जो हैं उसकी रोशनी में हमेशा हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मगर सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ इराक़ में, मुअम्मर गज़ाफ़ी का क्या हाल हुआ लीबिया में, सब लोग जानते हैं। इसी तरह आज अमेरिका ने ईरान पर हमला करके इसराइल के साथ मिलकर ये साबित कर दिया है कि अमेरिका को कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एक तरफा सिंगल पर्सन की हैसियत से, एक वाहिद शख्स की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया। ना इसने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को उससे मुशावरत की, ना अपनी कांग्रेस से इसके बारे में कोई डिस्कशन किया, ना ओपिनियन लिया। एक तरफा इसने ऐसा फैसला लिया और डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के नाम पर, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देने के नाम पर इसने ये हंगामा मचाया है कि सारी दुनिया में आज इसकी मजम्मत हो रही है। कई रिपोर्ट्स हमारे सामने मीडिया में आती रही हैं कि आयतुल्लाह खामनई को ये मालूम था कि अमेरिका उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसराइल भी उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है। उन्हें मालूम था कि उन्हें कभी ना कभी ख़त्म कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। मगर अब जिस तरीके से वहाँ का जो मोसाड है, उसकी जो इंटेलिजेंस है इसराइल की, उसने ऐसा मंसूबा बनाया कि उन्होंने हमेशा वो तमाम ठिकानों का पता लगाया और साजिश के तहत बिल्कुल धोखाधही के साथ उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर आज़म का कत्ल किया है। अगर ये तमाम धोखे से हटकर जंगी पैमाने पर यह कोशिश की जाती तो हमें नहीं लगता कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया जा सकता। आसान होता, वो कत्ल करना आसान नहीं था। अब ईरान ने हमेशा से इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मसलकी इम्तियाज़ात से बढ़कर हाथ बढ़ाया था। मगर अफसोस कि आज हम देखते हैं कि अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, चाहे वो मिलिट्री बेसिस सऊदी अरब का रहा हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रहा हो, या ख़तर का रहा हो, कुवैत का रहा हो, इराक़ का रहा हो, इन तमाम ममालिक के साथ इसने जो ताल्लुक़ात बनाए रखे हैं, उन ममालिक जो इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, नाम निहाद ममालिक, उन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस अमेरिका के लिए फ़राहम किए और वहीं से ईरान पर हमले हो रहे हैं। आज ये तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक जिसका भी मैंने जिक्र किया, सब खामोश हैं,
कहीं से कोई रिएक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। इन्हीं की मदद से ईरान पर हमले हो रहे हैं, और ईरान पर जब हमले हो रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है एक कहावत का कि जब तलक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होगा, लकड़ी के कटने का रास्ता ना होगा। तो लकड़ी ही लकड़ी को काटती है। इस्लामी ममालिक ही की वजह से ईरान ने उनको इस्तेमाल करके ईरान को, अमेरिका ने इस्लामी ममालिक को इस्तेमाल करके ईरान को तबाह करने की मनसूबाबंद कोशिशें की हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान अपने आयतुल्लाह खमीनी के हवाले से जिस कदर वालिहाना लगाव रखता था, अपने सुप्रीम लीडर की शहादत से इस कदर अब वो लर्ज़ा बरंदाम हो गया है कि वो चाहता है कि किसी भी तरह से इसकी जवाबी कार्रवाई की जाए। अब ऑलरेडी इसकी जवाबी कार्रवाई तेहरान से शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि इसराइल के तल अवीव में, यूएई में ईरान के जो जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब चारों तरफ से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कशीदगी फैली हुई है। ईरान खामोश रहने वाला नहीं है। ईरान ने मंसूबे बनाए हैं कि वो लड़ेगा, बिल्कुल साबित कदमी के साथ लड़ेगा और इस्लाम का परचम वो बुलंद करेगा। जज्बाती एतबार से कहना नहीं है, मगर इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी की गई है ईरान के साथ। इसी तरह ईरान की जो हुकूमत है वो चाहती है कि वहाँ तख्ता पलटने की जो अमेरिका का जो मंसूबा है उसको किसी न किसी तरह रोका जाए। अब देखना यह है कि ईरान के क्या हालात बाद में होने वाले हैं। क्या अमेरिका जिस तरह चाहता है वैसे वहाँ बगावत के आसार पैदा हो जाएंगे, या फिर वहाँ इमीडिएटली जो सक्सेसर वहाँ सुप्रीम लीडर बन जाएगा, फिर उसके तहत जितने भी जो सियासी और मजहबी जितने भी अफेयर्स होंगे वो फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। और ईरान जो अपने पेट्रोलियम रिसोर्सेस के लिए सारी दुनिया में एक मुमताज़ मकाम रखता है, कई ममालिक को वो पेट्रोल फराहम कर रहे, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फराहम करता है बशुमूल हिंदुस्तान के। अगर इंटरनेशनल ट्रेड पर भी उसने अगर पाबंदियां अपने तरफ से लगा दी तो ये मामूलम हो जाएगा कि सारी दुनिया में एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान पैदा हो जाएगा। जैसे ही खबर आयतुल्लाह खमीनी जो सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत की सामने आई, ईरान में बशमूल तेहरान, असफ़ान और अहवाज़ जैसे सूबों में लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और मातम में वो देखे जाते हैं। सभी ने अपने दिलों में उस दर्द को महसूस किया है कि उनके जो मुहाफिज थे उसको उन्होंने खो दिया है। बे वक्त ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में कई लोग रक़्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसी भी खबरें आई हैं। मगर सबसे बड़ा सफ़ाकाना पहलू इसराइल और अमेरिका के अटैक का ये रहा है कि हरमज़गान के एक ऐसे इलाके में जहाँ सिर्फ एक ही एक स्कूल थी लड़कियों के लिए, उसमें तकरीबन 200 गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं, तालिबात जो हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। यानी एक पूरी नस्ल का खात्मा हो गया। इसी तरह सूबे फारस में एक वॉलीबॉल की टीम के प्लेयर्स जहां प्रैक्टिस कर रहे थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां पर भी ऐसे बम गिराए गए कि तकरीबन 20 प्लेयर्स वहां पर फौत हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में इस कदर बर्बरियत के साथ बैरबैरिक अटैक जिसको कहते हैं, तो अमेरिका ने ईरान को तबाह करने की जो कोशिशें की हैं, हमें नहीं लगता कि ये आसानी से ये हालात हो जाएंगे। ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे हर कोई बाशऊर वाकिफ़ है, मगर जिस तरीके की, जिस नौइयत की शहादत ईरान के जो सुप्रीम लीडर को मिली है, उस पर मुझे उर्दू के इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का वो शेर याद आ रहा है कि फैज़ ने कहा था कि जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जान तो आती जाती है, मगर जिस धज के साथ, जिस वक़ार के साथ खामनई की शहादत हुई है, ये शहादत रायंगा नहीं जाएगी। ऐसा लगता है कि ये एक आने वाले इनकलाब का पेश ख़ीमा है, ये आने वाले हालात का एक अलामत है। ईरान पर अब ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए, अपनी शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
वो आगे बढ़े, साबित क़दमी से वो हालात का मुकाबला करे। मगर इस्लाम के नाम पर जितने ममालिक काम करते हैं वहाँ जिस तरह की खामोशी छाई हुई है, ये बहुत बड़ा मायूस कुन एक तरह से ऐसा मोड़ है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। दूसरी तरफ चीन और रूस दोनों ईरान के हामी रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये जो कुछ हुआ है अमेरिका की तरफ से ये बिल्कुल जारिहाना और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर है। आलमी जो खतरे हैं, आलमी जो ज़वाबित हैं ममालिक के दरमियान, उसके कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जो अमेरिका की जानिब से हुई है। और उसके साथ इसराइल ने भी इसमें जो दखल अंदाजी की है, ये बहुत बड़ा ही अफसोसनाक मरहला है। रूस के और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका तौर पर ये बयान दिया हुआ है कि वो इस मामले को उठाएंगे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, और जहाँ पर खामियां हुई हैं उसकी इजाले के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए वो कोशिश करेंगे। आज पूरी दुनिया में जितने भी अमन पसंद लोग हैं उन्होंने ये महसूस किया हुआ है कि ईरान के जो हालात हुए हैं और जिस तरह की सुप्रीमेसी अमेरिका ने दिखाई है इसराइल के साथ, अमेरिका ने ये इशारा दिया है कि हम जो चाहेंगे वो होगा, हमारी बात मानो, अगर ना मानोगे तो तुम्हारा वही हशर होगा जो हमने इसराइल की मदद करते हुए गज़ा में क़यामत मचाई है। इसी तरह ईरान की अब सूरत हाल हमने की है। अब सवाल ये उठता है कि आज ईरान इसका शिकार हुआ है और आने वाला अगला नंबर किस मुल्क का होगा, यह बता नहीं जा सकता। बेलगाम एक दीवानावार एक जानवर की तरह अपनी वहशियत के साथ अमेरिका बढ़ रहा है, बेलगाम तौर पर यह बढ़ रहा है और सारे आलम के अमन के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात में हर ज़ी शऊर को ये सोचना है कि किस तरह के ये हालात होंगे। आखिर में एक पहलू ये भी मैं आपके रूबरू पेश करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जब ईरान पर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला हुआ, उसके 2 दिन कबल वो इसराइल के सरकारी दौरे पे थे। वहाँ के पार्लियामेंट से भी उन्होंने खिताब किया था और वहाँ पर अश्योरेंस दिया हुआ था कि जिस तरह हिंदुस्तान मदरलैंड है, इसराइल एक फादरलैंड के हिस्से से अपना मकाम रखता है और हिंदुस्तान हमेशा इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मगर पीछे पलट कर देखें तो हमें ये मालूम होता है कि फ़लस्तीन का जो काज रहा है, उस काज को तक़वियत देने के लिए चंद ममालिक सामने आए थे, उसमें हिंदुस्तान भी सर फहरिस्त शामिल था। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा पैलेस्टीनियन काज को, रेस्टोरेशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट के लिए थी। आज पैलेस्टीन स्टेटलेस है, डिफेंसलेस है, उसके खिलाफ इसराइल की बर्बरियत 3 साल से मुकम्मल जारी है। और हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है, और हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। अब जो हमला अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात रही होगी। जिस तरह से इंटेलिजेंस उन्होंने मोसाद के तरफ से इसराइल ने की है, ये बहुत पहले ही से लेड आउट प्लानिंग के तहत ये अटैक्स हुए हैं। जाहिर है कि इसराइल के वज़ीर आज़म को पहले ही से ये मालूम था और अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी ये मालूम था। अब ऐसी चीज़ें हैं तो इसमें क्या इशारे लगते हैं आप जानते होंगे कि सब कुछ सोचे समझी साजिश के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। आखिर में ये बात कहनी ही ज़रूरी है कि अमेरिका हमेशा से इस्लाम की सुप्रीमेसी के लिए, इस्लाम की जो सुरखरुई है, इस्लाम की जो मकबूलियत है, उसके ख़िलाफ़ रहा है। इस्लाम दुश्मन रहा है, मुस्लिम दुश्मन रहा है। इसने हमेशा से कई बार इसकी ताल्लुक़ से हरकतें की हैं। ईरान पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी इसे कंडेम किया जाए, कम है। आज मीडिया में, सोशल मीडिया में चारों तरफ यही डिस्कशंस हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल राइटिस्ट विंग अपनाए हुए है अपने मुल्क में, मगर पैरेलल मीडिया जहाँ भी है,
जिस तरह से कि सारा डिजिटल मीडिया है, ऐसे कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने हमेशा हक, सच्चाई को, फैक्ट से एंगल से पेश करने की कोशिश की है। ईरान पर हुए हमले को और ईरान के रहबर आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जो शहादत हुई है, इसके पस मंज़र में देखा जाए तो लगता है कि दुनिया अब एक तीसरी आलमी जंग की तरफ मुड़ रही है। मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगी, इसके ताल्लुक़ से भी कई सवाल उठते हैं और जो नताइज अल्टीमेटली हतमी तौर पर ईरान में होंगे वो भी कई सवालों के जवाब हमें देते हैं।